افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں طیارہ گر کے تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا۔ افغانستان کے صوبے میں طیارہ گر کر تباہ ہوا اور افغان میڈیا کے مطابق یہ طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گرا اور پھر تباہ ہو گیا۔ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں طیارہ گر کے تباہ ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گرا اور تباہ ہو گیا۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں طیارہ گر کے تباہ ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گرا اور تباہ ہو گیا۔ طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گرا اور تباہ ہو گیا۔ جی ہاں، افغانستان سے خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ ضلع زیبک کے توپ خانے کے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تو شاہین وائٹ واش سے بچ گئے۔ کیویز کو آخری ٹی20 میچ میں 42 رن سے شکست دے دی۔ 135 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 92 رنز پہ ڈھیر ہو گئی۔ 3 وکٹیں لینے پر افتخار احمد مین آف دی میچ قرار پائے۔ محمد نواز اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ محمد رضوان نے 38 سکور کیے۔ مین آف دی سیریز کا اعزاز کیوی اوپنر فن ایلن لے اڑے۔ شاہین وائٹ واش سے بچ گئے۔ کیویز کو آخری ٹی20 میچ میں 42 رن سے شکست دے دی۔ 135 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں مختلف کمبینیشن آزمانے کا مقصد ورلڈ کپ کی تیاری ہے۔ شاہین آفریدی کہتے ہیں کہ عباس آفریدی کی پرفارمنس متاثر کن رہی۔ سائم ایوب کے لیے کنڈیشنز آسان نہیں تھی۔ اکیلے فیصلے نہیں کرتا، سب کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ شدید دھند کے باعث ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر ہے۔ ذرائع کے مطابق دبئی سے اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز PK 234 کراچی اتار دی گئی۔ کراچی سے اسلام آباد روانہ ہونے والی ملکی نجی ایئر لائن کی پرواز ER 504 منسوخ کر دی گئی۔ اسی حوالے سے آفتاب خان سے تفصیلات لیں گے۔ آفتاب بتائیے گا فلائٹ شیڈیول کتنا متاثر ہوا ہے؟ جی دیکھیے، جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اگر ہم بات کریں کراچی سے، تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی 2 پروازیں بین الاقوامی پروازیں کراچی اتاری گئی۔ متبادل ایئرپورٹ کے طور پر کراچی ایئرپورٹ کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ایک پرواز جو لاہور ریاض سے لاہور جا رہی تھی وہ بھی کراچی اتاری گئی۔ تو 3 پروازیں تو جمعے کو اتاری گئی تھی۔ آج اگر ہم بات کریں تو آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کے سبب کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے یہ ایک فلائٹ اتاری گئی اور اس کے علاوہ جو کراچی سے اسلام آباد فلائٹ جاری تھی نجی ایئر لائن کی وہ منسوخ کر دی گئی۔ اس حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ رواں سال کے 21 دنوں کے دوران جو ہے 575 پروازیں جو ہے یہ اب تک منسوخ ہو چکی ہے دھند کی وجہ سے، جو مختلف پاکستانی ایئرپورٹس کے اوپر جو دھند کی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ 135 پروازیں جو ہے یہ متبادل ایئرپورٹس پہ اتاری گئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ دھند کے لیے جو ہے اس کے متبادل کے طور پہ یا اس کے پیش بندی کے طور پہ جو ہے وہ K3 کئی ایئرپورٹس کے اوپر نصب ہے، جس پہ لاہور ایئرپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر بھی وہ سسٹم موجود ہو یا کپتانوں کی تربیت بھی اس کے لیے بڑا اہم وہ رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب گریجولی بہتر تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کسی وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ سنگین صورتحال ہو جاتی ہے ہوائی اڈوں پہ خراب موسم کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا آفتاب۔ پشاور میں پیاز، ٹماٹر، گوشت اور انڈوں کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی ہے، جس پر عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ مارکیٹ کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے وصال یوسف زئی سے۔ جی وصال، بتائیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں فردوس کی سبزی منڈی میں، جہاں پر مختلف سبزیاں بیچی جا رہی ہے۔ سبزی منڈی میں جو پیاز کی قیمت ہے وہ تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور
300 रुपये फी किलो बेची जा रही है। इसी तरह टमाटर की कीमत जो है वो 200 रुपये फी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह लहसुन और जो अदरक है वो भी तकरीबन 600 रुपये फी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह दूसरी जो सब्जियां है कचालू है उसकी कीमत भी 200 रुपये फी किलो है। और आज जो महंगाई है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो आम चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, मुर्गियां हैं, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो आम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और लोगों का कहना है और जो हुकूमत है उनसे डिमांड है कि जो आम चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, जो मुर्गियां हैं, उसकी कीमत कम की जाए। विशाल, आपका शुक्रिया। इसी तरह कोयटा में भी महंगाई का ट्रेंड काबू में ना आ सका, इंतजामिया नाकाम हो गई। सब्जियों, चिकन, गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। कोयटा की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान अफजल से। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महंगाई के जिन बेकाबू हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद है अशिया खुर्दनूस की कीमतों में अभी तक कमी वाक़ई नहीं हुई। अशिया खुर्दनूस की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। अगर मैं सब्जियों की बात करता चलूँ, इस वक्त जो है प्याज डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। 240 से 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से प्याज फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू 150 रुपये, टमाटर भी 200 रुपये, इसी तरह जो भिंडी है 150 रुपये और मटर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह मैं लहसुन की बात करूँ, लहसुन इस वक्त 900 रुपये और अदरक जो है आपका 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मैं बात करते चलूँ इस वक्त अंडों की, कोयटा शहर में इस वक्त अंडे भी जो हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 380 से 400 रुपये फ़ी दर्जन अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अगर मैं मुर्गी की बात करते चलूँ, इस वक्त मुर्गी की कीमत जो है बाज़ार में 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। बकरे का गोश्त 1800 रुपये और बैल का गोश्त जो है 1200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। हमने शहरियों से बात करने की कोशिश की, शहरी को ये कहना था कि इस हवाले से कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, मगर जो अशिया खुर्दनूस की कीमतें हैं उनमें अभी तक कमी नहीं की गई है। उन्होंने हुकूमत से ही मुतालबा किया है कि जो अशिया खुर्दनूस जिनमें सब्जियाँ, गोश्त, मुर्गी और दीगर अशिया आती हैं, इनकी कीमतों में भी कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, आम इंतखाबात का काम डाउन शुरू, सियासी पाराहाई, मुख्तलिफ जमातें मैदान में उतर पड़ी। पीपल्स पार्टी आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। जी हाँ, और NA 127 में पंडाल सजा लिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों का लहू गरमाएंगे और इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, बताइएगा इस वक्त कैसी तैयारियां देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन के हवाले से हल्का NA 127 में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, चूँकि वो भी लाहौर में है, लेकिन इसी के साथ साथ आसफा भुट्टो की भी जो है इतला की दिया गया कि वो भी रात को जो है लाहौर में पहुंचेंगी। आज जलसे से खिताब भी करेंगी। जो है टाउनशिप में जो स्टेडियम में जलसे के हवाले से तमाम पंडाल को सजा दिया गया है। 15,000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो इस वक्त लगाई गई हैं पंडाल में। अभी कारकुनों की जो है आमद का सिलसिला जारी है। टाउनशिप की तरफ जाने वाले तमाम शाहराहों पर पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो जरदारी की और इस तरह आसफ जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी बड़ी कदावर तस्वीरें और बैनर्स और पोस्टर अवेजा किया गया है। तमाम शाहराहों पर तराने पीपल्स पार्टी के वो भी बजाए जा रहे हैं, इसलिए गाने का लगाए भी गए हैं ताकि लोगों का जोश व खरोश को बढ़ाया जा सके। पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले 1 बजे का टाइम दे दिया गया था, लेकिन अब इस टाइम को बढ़ाकर जो है वो 2:30 बजे कर दिया गया है। तो आज पीपल्स पार्टी एक जो है जलसा वो यहाँ लाहौर में अपनी ताकत मुजाहरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि अपने मुतअद्दिद बात तकरीरों में ये कह चुके हैं कि वो लाहौर में को जो यहाँ पे इलेक्शन जीतकर न सिर्फ लाहौर में पीपल्स पार्टी बल्कि पंजाब में पीपल्स पार्टी एक जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा और पीपल्स पार्टी लाहौर से और पंजाब में भी अपनी पुरानी खोई हुई ताकत को बहाल करेंगे। तो इस हवाले से अभी जो है काफ़ी जज्बा जोश व खरोश देखने में आ रहा है, लेकिन अभी इनकी तादाद कम है। लेकिन अभी चूँकि जलसे का टाइम भी बढ़ा देगा, लिहाजा अब जो है वो बड़ी तादाद में लोगों की तवक्का ये की जा रही है कि मकामी क़यादत जुलूस की शक्ल में और रैलियों की शक्ल में पंडाल पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आपने आगाह किया। और MQM पाकिस्तान ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। बाकी जिना में जलसे के लिए पंडाल सजा लिया है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बाकी जिना में जलसे के लिए पंडाल सजा दिया गया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार खिताब करेंगे। सहाफ़ती तंजीमों के अहम इजलास में मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार किया गया। सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब्स ने मुत्तहद होकर
सूरत-ए-हाल से निपटने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ यूनियंस, प्रेस क्लब्स और सहाफ़ियों, इसके अलावा मीडिया वर्कर्स की एसोसिएशंस का इजलास नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें फ्री मीडिया के लिए इत्तेहाद बनाने का फैसला किया गया। इजलास में एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ एडिटर्स के सदर अजहर अब्बास, सेक्रेटरी जनरल तारिक महमूद, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नायब सदर आमिर महमूद, सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक शरीक हुए। इजलास के शुरका का कहना था कि कोशिश की जा रही है कि सेंसरशिप नाफिज की जाए। आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोशिशों में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। अगर इस मामले पर एडिटर्स, सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स खामोश रहे तो मौजूदा सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। इजलास में इत्तफाक किया गया कि आज़ादी इजहार राय और जिम्मेदाराना सहाफत को यकीनी बनाया जाएगा। सहाफ़ियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रियासती या गैर रियासती अनासर की जानिब से मीडिया हाउसेस पर किसी भी हमले के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमत की जाएगी। सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सहाफ़ियों की किरदार कुशी की रोकथाम के लिए इज्तिमाई जिदोजहद की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.fk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।